Good evening and welcome to this special presentation that we are bringing to you from Ground Zero in Morbi, where just about 25 hours back, a tragedy struck and more than 130 people are dead as a result. Where I'm standing right now is very, very quiet. It's eerily quiet, ladies and gentlemen, but this is the very spot which is now the witness, which is now the epicenter, which is now the ground zero of what happened yesterday. It was a buzzing Sunday evening. Let me just try and paint that picture for you. A buzzing Sunday evening where people, not only from Morbi, but from relatives, those who had come to visit somebody from Jamnagar, from Rajkot, from other places, had come to the Machu river. This is the river just behind me. Now, because of the operations which have been going on since yesterday, much of it has been drained. The water has been diverted. There are still a few people missing. The search for those bodies are still going on. But where I'm standing, ladies and gentlemen, this structure, though it's very dark, but the structure that you see is known as the Darbargarh end of this bridge. There are two ends to this bridge. One is Darbargarh, the other one is Swami Narayan. And behind this door, behind this very door, is the real story of the collapse of this bridge. Hundreds of people, more than 400, purchased tickets, came to this, in fact, place where I'm standing right now. Imagine the queue here, the hustle bustle, so many people with their families, with their children. And this is what welcomed them. This one of this star, two such stars on each end of this, bridge. One here at the Darbargarh end, the other one on the farther end is the Swami Narayan temple end. And this is the gate through which very excited people went onto this hanging bridge. Hundreds of them enjoying their Sunday evening with a lot of noise, a lot of enthusiasm, a lot of laughter, I can imagine. This bridge which you are seeing hanging right now is hanging on just one wire. My camera person Pawan will show you how this bridge is just hanging on one wire, and this is what will tell you the story of what happened yesterday. The other end of the wire just behind me, which has been tied behind this very door that I'm talking about. The other end of the wire was just behind this. That's the wire, old wire, which snapped under the great burden of the crowds that had come in. And the result, ladies and gentlemen, was from the edges, from the corners, a lot of people falling to their death 30 to 40 feet below on the hard surface, on the ground, on the banks of the river. Many falling on top of each other. Those in the middle of the bridge fell right in the middle of the river. Many fell on each other, lost consciousness, and as a result died due to drowning. Since the evening that I have been here, and I've been traveling all across Morbi through the day, this is what stays with me. This shoe of a child, possibly not more than 2 or 3 years old, which is left a witness to the tragedy that unfolded yesterday. More than 47 children, between the youngest being just 2 years old, between the age of 2 and 18, have lost their life in this tragedy. Imagine the plight. 47 children out of more than 130, total victims. Many have lost multiple people from their family. When I see this shoe, my heart goes out to that child, to their family. Our hope, our prayer here at NDTV is that hopefully this child would not be among those who have perished, may have survived, but many were not lucky. Many have lost their entire families. That's the sad part of it. While we are talking about accountability, while we are asking the questions that need to be asked, there is no tomorrow for these questions. Why should these questions be asked tomorrow? Why should the government, the agencies, the people who are responsible hide behind the veil of telling us that today is the day of mourning? Yes, today is the day of mourning. The entire Morbi is mourning. A lot of people across the country are mourning. But
this mourning would be in vain if accountability is not fixed. Because what I'm going to show you now, next, is a story of a man who lost 7 people, 7 members of his family. 4 of them were visiting him, his sister, their children from Jamnagar. They were supposed to go back to their residences to Jamnagar today. And for just last time, they live close by. It's just about 500 meters from where I'm standing. They decided, let's go and spend the evening at the historic hanging bridge, the suspension bridge of Morbi. 8 people came from that family. 7 never made it back. 1 is still in hospital, injured. Not been told that his wife and 2 children have perished. His cousin, his wife and their 2 children have also perished. 7 janazas from one house. That's the story of almost every nook and corner of every gully here in Morbi. Take a look at this story. क्या नाम है सर आपका? सामदान मदलूम सा। आपके परिवार के 7 लोग कल आपने खो दिए। कौन कौन थे आपके रिश्तेदार में? परिवार कौन थे? मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे, एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गए। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। आज वो जाने वाली थी, तो कल उसने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। वो सब 8 जो थे, 4 बच्चे थे, 4 बड़े थे, उसमें 4 बच्चे और 3 जो थे बड़े, वो सभी देहांत हो गया सभी का। कब गए थे वो लोग घर से? आप लोग कि यहीं से, इसी घर से गए थे जो पीछे यहीं पे रह रहे थे? यहीं से कब, किस समय निकले वो लोग वहां पर जाने के लिए? और क्या उम्र रही होगी बच्चों की और बड़ों की? यहाँ से 4 बजे निकले थे और बच्चों की उम्र थी, एक 6 साल की बच्ची थी, 7 साल का बच्चा था, एक 5 साल की बच्ची थी, एक 7 साल का बच्चा था, एक 19 साल की बच्ची थी और एक जो हमारी बहन थी जो 28 साल की, और एक हमारा जो चाचे का भाई है उसकी बीवी थी 26 साल की, और सभी का देहांत हो गया। आप लोगों को कैसे पता लगा वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया? सोचा था आपने कि भाई आपका परिवार भी वहां पर होगा? आपको पता कैसे चला इसके? पता तो था कि यहाँ से गए वो सब, और जो हादसा हुआ तो पूरे गांव में उसका सन्नाटा बस गया था। पूरे गांव में हड़िया सब लोग वहाँ जाने लगे, सब वहाँ पूरा गांव का आदमी सब वहाँ पहुँच गए थे। तो गांव तो छोटा है, इसलिए तो सबसे पहले सबको मालूम पड़ जाता है सबको। जब पूरा वहाँ थे तो वहाँ गए तो आप हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल में हम गए तो रात को 4 बजे तक हम वहाँ रहे, और 4 बजे हमको 7वीं जो लाश हमारी थी वो 7 बजे हमको दिया उसने। कल शाम को? सुबह? हाँ, आज सुबह। आप लोगों ने मुश्किल हुई ढूंढने में उनको? मुश्किल तो बहुत हुई, बहुत परेशान हुए? बहुत। हाँ जी, 50 आदमी ढूंढ रहे थे, पूरा परिवार ढूंढ रहा है। 50 से भी ज्यादा था। हमारा जो समाज था, समाज भी पूरा था, हमारा कुटुंब के 50 आदमी थे, सभी सब उसको ढूंढने में लगे थे। और सभी हॉस्पिटल पे सुबह 6 बजे से सब हॉस्पिटल पे थे सब। 4 बजे जो एक लाश बाकी थी वो 4 बजे मिली, फिर हम यहाँ घर को सबको लेके आए सबको। जो परिवार थे जो अब उनको कहाँ दफन किया गया? आप लोगों ने यहीं जामनगर गए हैं, यहीं पे दफन हुए? जो 4 मेंबर हमारे थे जो वो यहीं पे हमने मोरबी में किया, और 3 जो थे हमारी बहन थी जो उसके 2 बच्चे थे, वो उस जामनगर के पास वो खगड़ी गाँव है, उसको वहाँ दफन किया है। कितना मुश्किल हुआ होगा परिवार को बताना कि ऐसा, और घर के लोगों को बताना कि ऐसा हादसा आपके घर में? मुश्किल तो बात ही मत करो, मुश्किल के तो घर की औरतें को, जो हमारी जो चाची थी उसको तो हमने बताया ही नहीं था उस सबको, उसको तो सुबह में बताया सबको। और पूरा जो हमारा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला गमगीन था, पूरा।
सभी लोग वहाँ से वहाँ तक आदमी और पूरे औरतें का पूरा भरा हुआ था सभी जगह पे। और पूरे गांव में भी पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया था, एम्बुलेंस से सिर्फ चालू थी, पूरा गांव रोक दिया था ट्रैफिक सभी का। आप में बहुत हिम्मत है कि आप ऐसे बात कर रहे हैं। मेरा गला भरा है सुन के, क्योंकि किसी एक परिवार में इकट्ठा ऐसे हो बहुत मुश्किल होता है उस परिवार के लिए उससे उभरना। ये आप काफ़ी समय से यहाँ रहते हैं, शायद आपकी पैदाइश यहीं की होगी, आपने इस पुल को कई सालों से देखा होगा। बचपन से 10 पैसा डाला तब से ये पुल हम चलते हैं। 10 पैसा पहले 10 पैसे में चलता था ये पुल। हाँ 10, हाँ उस पुल पे जाते थे। ऐसा पुल नहीं है ये, वो 10 पैसे वाला पुल था ना, वो सच्चा था। ये पुल अभी बनाया 200 करोड़ वाला, वो पुल बेकार बनाया उसने। 8 दिन में तोड़ दिया। गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं? गुस्सा तो बहुत था कि जो ये पुल बंद था और उसने जिसने जो रखा हुआ है उसने 2 करोड़ में उसको रिनोवेशन किया, तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना आदमी को टिकट उसने दे दिया। और पूरा जो झूलता पुल है उसके पूरे जो आदमी ज़्यादा हो गए, उसका झूलना ज़्यादा हो गया, फिर उसकी जो रस्सियाँ था वो टूट गई, 2 उसके भाग हो गए। एक भाग में जो सभी थे वो उस सभी पानी में गिर गए, एक भाग में जो था उसमें सब लटक गए सब। और जब आप पहुंचे थे वहां पे कल, आप भी गए होंगे, जी हाँ, क्या माहौल था उस समय? माहौल तो पूरा गमगीन था। जो आदमी जो तरवैया थे, जो पानी में जो मच्छी मार का धंधा करते हैं, वो सब 50-60 आदमी वो डेड बॉडी निकालते थे। और दूसरे बहुत आदमी थे वो सब अंदर उतरे हुए थे। पूरा गांव वहाँ पे खड़ा हुआ था, सभी एम्बुलेंस 40-50 एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई थी, प्राइवेट जो होते वो वाहन वो भी वहाँ लगे हुए थे। पूरा माहौल वहाँ गमगीन था। और आदमी जो जिसके पास जो मदद होती थी सब मदद करते थे गांव के। एक घर से इतने जनाजे उठना बड़ा मुश्किल है। कैसे परिवार भी आपका ढांढस बांध रहा है? अभी तो 2-4 घंटे हुए हैं, अभी तो 2-3 दिन तो यहाँ सब मेहमानों सब रहेंगे, बाद में तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदार किसे मानते हैं? आपने अपने परिवार को खोया, जिम्मेदार तो जो जिसने जो ये काम किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने उसके जो अभिमान था गलत, उसके हिसाब से जो जिसने जो रखा हुआ था, जिसमें जो शामिल थे सब, जो जिसने जो किया उल्टा पुल रखा होता, वही जिम्मेदार है ना। इतने 150 आदमी मर गए, उसका वो जिम्मेदार है सभी का। क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए ना उसको। जो आता है 302 आती है, जो खून का आता है उसका लगना चाहिए। और एक आदमी जामनगर से आया था, उसका फैमिली लेके, और 4 बजे वहां से निकल गया, 4-4:30 बजे, कि इसके आदमी इसके ऊपर आदमी है, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा है। उसने वो बारी थी, जो टिकट बारी थी, वहां जाके उसने उसको फरियाद किया कि ये पुल के ऊपर आदमी बहुत है और उस झूलता बहुत है, मेरे ख्याल से ये गिर जाएगा, आप उसको कम करो आदमी को। तो वो बात में उसने ध्यान नहीं दिया और उसके 2 घंटे बाद ये हादसा हो गया। उनका कुछ तस्वीरें हैं आपके पास जो आपके परिवार के लोग नहीं रहे? मैं देख सकता हूं अगर आप। ये हमारे चाचा की जो लड़का है उसकी बीवी थी, ये 2 बच्चे थे उसके। ये दोनों नहीं रहे, तीनों नहीं रहे। और भी परिवार के लोग थे आपके? ऐसे ना, ये बच्ची थी 19 साल की थी, ये वो नहीं रही जी। और ये लड़का था जो हमारी बहन थी, जामनगर से थी, उसका लड़का ये है। ये हमारी बहन है जो है जामनगर से आई थी। ये बच्चे 2 थे उसके। अब आपके लिए बस फोन में ये फोटो और यादें ही रहे। उसकी यादें है, दूसरा तो क्या है। क्यों ये सवाल आज ना पूछा जाए कि जिन लोगों ने, जिनकी ये गलती है,
उनके उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाएं, सरकार से सवाल क्यों ना पूछे जाएं कि म्युनिसिपैलिटी आंख बंद करके क्या कर रही थी अगर इस तरीके से पुल खोल दिया गया बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के। इनकी सोचिए, ये अब बार बार वो तस्वीरें देख रहे हैं, इतने छोटे बच्चे थे, 4 छोटे बच्चे इस तरीके से परिवार ने खोए, 3 और परिवार ने लोग खोए, एक घर से 7 लोगों का जनाजा उठा। क्या तो कोई इनको आके ऐसे शब्द कहे कि जिससे कि इनको कुछ ढांढस बंधे, कुछ सांत्वना मिले। इनके लिए शायद अब इंसाफ, ढांढस, ताकत वही होगी कि कम से कम सरकार सुने, देखे इनके साथ क्या हुआ है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तय हो, उस कंपनी के भी, म्युनिसिपैलिटी के भी और मोरबी के उन अफसरों की भी जो आंख बंद करके इस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार है। It was a very difficult conversation that I had with that gentleman who still was more strong, in fact, very strong in the face of the tragedy that he has gone through. Very quickly, I just want to tell you, you can see some searchlights, in fact, being used. There are 2 of these boats of the Indian Navy and the NDRF which have just come in. There are still patrolling going on because we've been told that there are still a few people, those who are reported missing. It's quite dark. We'll try, in fact, and show you. Those are 2 boats which have just, in fact, come in after a patrol of this entire area. Continuously, there are water pumps which are draining the water. But, you know, one end of the tragedy is the place where it happens. The other end becomes the hospital where survivors and, of course, those who have lost their lives are taken. My colleague Tanushree Pandey went to the civil hospital to speak to those who survived this horrific incident. This is the government hospital in Morbi, just about 5 kilometers from the location where the suspension bridge collapsed yesterday. Now, you can see these are all survivors. These are people who have survived the tragedy, but they have lost their friends. Some have lost their wives. Some have lost their children. This gentleman here, in fact, was showing me a ticket, Gargi, of rupees 17, which he bought before entering, the bridge, and he was telling me that that ticket was sold to about 500 people when the bridge could only take about 100 to 150 people. Sir, आपसे बहुत माफी चाहूंगी इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. आप नाम बताइए. अश्विन अर्जुन भाई सत्यवाला. अश्विन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई. कितने बजे का समय रहा? 6:30 बजे. और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था. 400 से 500. आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं. ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं. 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था. और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा. तो सीधी सी बात है कि ओरेवा कंपनी, जिसको सरकार ने ये टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रिज को रेनोवेट करने के लिए, उन्होंने टिकट देकर 500 लोगों को, करीब 400 से 500 लोगों को ये टिकट बेचा, जबकि ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी. आपको भी बहुत चोट आई है. बहुत से लोगों ने अपनी जान खोई है. 140 छोटा आंकड़ा नहीं होता. तो आप मुझे एक बात बताइए अश्विन भाई, जब आप वहाँ टिकट खरीद रहे थे, कितने लोगों को टिकट बेचा गया? हम जब टिकट खरीद रहे थे 60-70 लोगों तो इन्हें हमारे सामने बेची. अच्छा. और कितने लोग ब्रिज पे थे? ब्रिज पे तो आता था, सब लोग आ रहे थे. फिर भी कितने लोग रहे होंगे? फिर भी आखा ब्रिज पर तो 700-800 लोग रहे गए, पर वो टूटा नहीं है. 400-500 लोग, 400-500 लोग रहे होंगे जब ब्रिज टूटा. तो आप लोग घूमने गए थे वहाँ? हाँ, हम घूमने के लिए घूमने गए थे. तो आपको क्या लगता है कि ये क्या, किस तरीके का, मतलब ओरेवा जो कंपनी है उनकी गलती है, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया, इतना बड़ा ब्रिज टूटा, इतने लोग मरे हैं, इस तरीके की दुर्घटना भारत में नहीं देखी गई है पिछले कुछ समय में. आपको क्या कहना है इस बारे में? जो 15-20 जना छोकरा है ना, 15-20 साल का, वो सब पुल के बीचों बीच वायड़े मस्ती करते हैं, झाड़ी में पग मारते, और रास्ता बंद कर दिया ने, वो इससे घटना बन गई. नहीं, उसके बावजूद भी एक ब्रिज का गिरना, आपको क्या लगता है कि ध्यान नहीं दिया, जो अथॉरिटीज थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रेनोवेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं, और इतने सारे लोगों को जाने दिया टिकट खरीद के? तो हम क्या आपको मालूम नहीं, कैसा चेक किया नहीं किया, तो हमको मालूम नहीं. हमें तो ये 17 रुपए की टिकट दी, हमने 2 टिकट ली और चल दिए.
ये एक पीड़ित है, कल की जो दुर्घटना हुई है उसकी पीड़ित है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ और भी लोग हैं। ये जो है इन्होंने अपने एक दोस्त को खो दिया, उनके दोस्त की मृत्यु हो गई, इनकी जान बच गई पर दोस्त की मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक और जो इस वक्त पे है, ये अभी तक होश में नहीं आ पाए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक महिला है, उनका पैर टूट गया है, उनकी माताजी यहाँ बैठी है। माताजी, बहुत माफी चाहूंगी इस वक्त पे आपसे ये सवाल पूछते हुए, पर आपकी बेटी है? मेरी बेटी नहीं है। आपने मुझे बताया। अच्छा, आप यहाँ किसके लिए हैं? मन का है बना। आप इनके रिश्तेदार हैं? एक छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है, तो ये अभी भी बहुत जख्मी है। किस तरीके से ये दुर्घटना हुई? आपको क्या लगता है कि ये किस? पता, हम लोग यहाँ नहीं थे कोई भी। ये थी और दूसरी मेरी बड़ी छोटी बहन है ना, वो साथ में। हम में से कोई भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किस तरीके से आप लोग उभर रहे हैं? अभी तो एक हमारी और औरत चली गई, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग क्या आपको जवाब, क्योंकि इसके सामने तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसको पता नहीं। और इसको यहाँ पीछे लगाए तो चक्कर भी आ रहे हैं, उल्टियाँ उठा रहे और यहाँ दर्द भी हो रहा है। इसलिए हम इसको मना कर रहे कि आप कोई भी सवाल इससे मत पूछो, जो भी पूछना है वो साथ में हो उससे। आप कह रहे हैं इनकी एक दोस्त की मृत्यु भी हो गई, मामी की। Got a call from the administration this morning saying that a tragedy has happened and their family members have lost their lives. We cannot even imagine how this news, how they must have received this news. But in hospital the situation is grim. The relatives are sitting here, they are waiting for their loved ones to wake up. Some are outside the mortuary trying to receive the dead bodies of their family members. They are completing the paperwork. So the entire state of Gujarat right now is just trying to, get over from this huge, massive, unfortunate incident which took place yesterday, where a suspension bridge, which was just renovated on the 26th of October, came down, and about more than 140 people have already been confirmed dead, and rescue operations are still on. Let's hope that the death toll doesn't go up, but what looks like on the ground, in all likelihood, it is going to go up. So that was Tanushree, my colleague, who was at the hospital, the civil hospital, talking to the people, those who have been brought there because of their injuries. But ladies and gentlemen, the Prime Minister is in Gujarat, and it's the election season. So of course, despite people giving you big, large sermons that this is not time for politics, there is politics going on as far as this tragedy is concerned. The Prime Minister today, speaking in Banaskantha, choked up while he was speaking about this tragedy. Rahul Gandhi, meanwhile, said that he will not want to pin the blame at this moment. This is not the time. People have lost their lives. It will be disrespectful for them. But the Congress party and their leaders here have been quite aggressive against the BJP government. તમારી વચ્ચે આવ્યો થરાદ બનાસકાંઠા અને આપણું આ ઉત્તર ગુજરાત એના માટે પાણી આના એક જ કાર્યક્રમમાં 8,000 કરોડ રૂપિયાની યોજનાઓ. हाँ जी अब्दुल जी. सर येस्टरडेज कल के इंसिडेंट में मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, इसकी जवाबदेही कौन देगा?
कौन है जिम्मेदार इसका? गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं किसकी जिम्मेदारी है इस राज्य की? That's all the time that we have in this special edition. Stay tuned. This is the top focus here on NDTV 24/7. We'll continue to bring you the ground reports.